कैसे हो आप लोग? ऑल ऑफ योर फर्स्ट टाइम वोटर्स? ओ लवली। आप ही कॉलेज से मैंने पढ़ाई की है। कम गाइस, लेट्स प्ले बास्केटबॉल। चलो चलो चलो, कम 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 कम। That's a good one. You know, this is the best part of Patna Women's College. Come on, yay! Thank you. The best part of covering elections is that I get to visit my college and interact with the students of my college. We are at Patna Women's College, perhaps the best institute for girls in Bihar. Let's interact with young girls. Many of them are first-time voters and get a sense of what do they think about elections this time around. What is happening in Bihar? क्या हो रहा है इस बार इलेक्शन में? मैम अभी इलेक्शंस हो रहा है हमारा, हम लोग जो है अभी फर्स्ट टाइम है हमारा, सो वी हैव ऑप्शंस, हम लोग को एक्सप्लोर भी करना है इसको लेकर, सो वी आर एक्साइटेड फॉर इट. What do you think is happening in this election? I think what previously was going on, the same situation is going on. They have propagandas, they have their they are telling that we will do this thing, we'll do that, but we don't see a roadmap how they will do those things. We don't have that that roadmap. We don't have. So 10,000 rupees, how many girls have got? It's for a fixed. You've got? Okay. So tell me about it. So basically, I got 10,000 rupees after my 10th. So and after my 12th also, I got 25,000. So, but it's not for all the students who are passing out. It's just for the students who are scoring well, who are scoring who are getting first divisions. So these are for. Okay, so that's coming from the Mukhyamantri. Yes. Students के लिए. Yes, yes. Let's talk about the promise which has been made by Tejasvi Yadav. Yes. Of one job per family. So I want to ask कि वो इतना सारा जॉब लाएंगे कहाँ से, क्योंकि इतने सारे जॉब्स हैं नहीं. एक्चुअली सेंट्रल गवर्नमेंट के पास 50 लाख जॉब्स है, एंड ही सेड कि वो बिहार के हर फैमिली में एक एक गवर्नमेंट जॉब ला के देंगे. बट फ्रॉम वेयर, आप कहाँ से दोगे वो जॉब्स? आप प्रॉमिस तो कर रहे हो, एंड बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उतने एजुकेटेड नहीं है, तो उन्हें तो लगेगा कि या ही विल प्रोवाइड यू द जॉब, बट आफ्टर एट द एंड उनको क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं. सो फेक प्रोमिसेस. जब आप पढ़ाई करके यहाँ से अपना ग्रेजुएशन कर लेंगी तो उसके बाद क्या? Like all of, I mean, I am also a student of Bihar. I was studying here. At times I feel if I had better opportunities, would I have stayed in the state? Perhaps yes. You know, we did not have opportunities and that's why we had to leave Bihar for better opportunities. So what's your plan? मैम माई प्लान इज कि अगर सरकार अच्छी आती है, हम अच्छी सरकार, बिकॉज वी आर द यूथ, वी चूज गुड वन. सो इफ वी चूज एंड दे वर्क ऑन इट, तो बिहार में बहुत तरक्की आएगी, बहुत उन्नति आएगी, हमें यहाँ पे बेटर ऑप्शंस मिलेंगे. As a student, what are your concerns? मेरा कंसर्न इस मामले में ये है कि जो भी अभी पार्टी चल रही है या जो भी यहाँ लीड कर रहे हैं, उन लोग को ये चीज बिहार के लिए चेंज करना चाहिए कि किसी के माइंडसेट में ये ना रहे, ओ बिहार से इसको तो यहाँ पे अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी, उसको यहाँ से चेंज करके जाना होगा, वहाँ पे बेटर ऑप्शन है. ये चीज किसी को फेस ना करना पड़े. यहाँ पे वैसा चीज डेवलप्ड करे कि लोगों को बिहार छोड़ के दूसरे एरिया में ना जाना पाए, वो प्राउडली कह सके कि वो हम बिहार से हैं. Among the faces that are there in this election, Nitish Kumar, Tejasvi Yadav, Samrat Chaudhary, Prashant Kishore, who do you think is speaking the language of the students or speaking the language of the youth? Youth की आवाज है. Ma'am, basically they don't have anything to do with education. They are just after votes. They want votes and they know that there are young voters. They know the women voters are a lot. So they are speaking for them right now. It's just for votes. It's just for elections. So you don't take anybody seriously? Ma'am, Not we yet, have no. options. We have to choose between the worst and the worst. So we are going for the worst part of the situation as of So now. you are saying there is no choice only? There is no choice. No choice. I believe we don't need a progressive political system. We just need someone who can work on the basic necessities of the people, like the food, clothing and shelter. And also the most important thing is education should not be an option. It should be compulsion for all. This will only improve the civic sense of Biharis. If I want to stay in Bihar, I want that if I want to work in IT sector, I want to see the IT sector. But the growth level of Bihar, that is
there is growth, there is infrastructure, there is everything. But as compared to other states' development or as the country's level, Bihar is still lying very much behind. You're disappointed? Very much. हमारे पापा कहते थे जंगल में मोर नाचा किसने देखा. अगर आप बिहार छोड़ करके कहीं जाकर के बहुत अच्छा भी कर लेंगे तो कौन देख रहा है अपने. आपकी जगह का, आपके जो होम टाउन है उसी का नाम नहीं हो रहा है. आप लोग का मतलब ऐसा नौबत आ जा रहा है कि आप लोग दूसरी जगह का यूज कर रहे हैं, वहाँ का नाम यूज कर रहे हैं. आप अपना आइडेंटिटी जो है वही छुपा रहे हो. Okay, women's safety. Everybody is saying that under Nitish Kumar's tenure, women feel safer. Is it true? Not entirely. And also, ma'am, if we are saying women's safety, dowry is the most biggest challenge in Bihar. बिहार में सबको पता है कि डाउरी इलीगल है हर जगह, मतलब पूरे इंडिया में इलीगल है. बट स्टिल इतनी मतलब आसानी से लोग लेते हैं एंड प्राइड जैसे इसको यहाँ पे शो किया जाता है. तो कहाँ है गवर्नमेंट इस चीज पे, कहाँ क्यों है नहीं काम हो सरकार? रही बिल्कुल है? सही. डाउरी पर. बैन ऑन लिकर, क्योंकि लिकर जस्ट वो सही है, तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट इशू है वो. हाँ, बहुत इम्पोर्टेंट इशू. मैम स्पोर्ट्स में मैम एजुकेशन, एजुकेशन. क्योंकि यहाँ के स्टेट बोर्ड्स में जैसे टीचर आ रहे, टीचर को भी पढ़ाने नहीं आ रहा, और हम लोग का इंटरव्यू वगैरह होता है तो पता चलता है टीचर को खुद पढ़ाने नहीं आता, वो बच्चे को ही क्या ही पढ़ाएगा. चलो एक नोट पर हम एंड करते हैं. किसी को कुछ गाना वाना आता है? मैं तो बादलों से दूर जाऊंगी, मैं तो अपना ही सुर पाऊंगी, है जो क्रेजी क्रेजी सपने मेरे सारे चुन के मैं बुन आऊंगी. हमारा इस दुनिया की हुई नहीं, मैं अपनी ही दुनिया बनाऊंगी, कि एक जिंदगी मेरी सौ ख्वाहिशां मैं पूरी करा. So a former student of my college, that is Patna Women's College, is running this restaurant in Patna. A number of women-run restaurants have come up across Patna. So Jyoti, what is this ikigai that I'm seeing on all the tables? And this Japanese secret to a long and happy life, is that the reason why you started this cafe? Ikigai itself means passion, where there should be a connect. If people don't connect to each other and don't come out with freedom, I mean, one should liberate, one should feel that something which is coming from inside should reach to the other. So we came up to this cafe concept where we thought that we should make it a book cafe where we will be doing the book discussion. Ikigai is one of them. And that's the inspiration for this cafe because it is called Liberate Bites. So what all do you serve here? Now we are only serving some drink and snacks and some bakery. Come, let's chat. So Jyoti has brought matcha to Patna. Jyoti, a lot of experiments are being done by girls here, women here. I mean, all of you are very accomplished women. Yes, see, we thought that there should be some uniqueness to the concept. So, coming back to the food, we thought that there's a high lot of competition in eateries and in everything. So, we thought that we should bring something unique and different to people and to especially to youth who are so much into viral and trends these days. They always focus on what is trending and what is viral. So, at least keeping in mind, we thought let's do something. Since we are in the middle of an election season, let's talk politics. And let's talk about choices of women voters. So what are the women voters thinking, Rekha? Am I supposed to say very, very openly, clearly? Everything. See, I think today everybody is very smart, especially if you look at the women and the young girls. So they are quite aware. They know what they want. And they would definitely go for the person who commits to their needs. Even I work in the rural areas, so when I go there, women talk about that ये हमारा अधिकार है, हमको मिल नहीं रहा है. So I feel very proud and happy at the same time that they talk about these things. What are the issues that will decide the vote of women voters like you? Educated,
women voters who live in cities or urban pockets of Bihar? I believe there are very, small issues which are not have been spoken by many political parties. Like, see, if you look at the system right now, you are educating girls, you are making them a dreamer, you are giving them wings through different schemes, and then after graduation, what's happening? They are getting married, and you are chopping off their wings. Despite Jivika Didi, right? So that needs a more concentrated, focused effort. Monitoring is something, right, in bureaucracy that they have to have that hold into bureaucracy. They are introducing policies, they are introducing subsidies and all that, but that's not reaching to the right kind of people. If there's a neta, I'll go to that leader with 4 of my people and he will listen to me. But if I have an issue with bureaucracy, I have an issue with some policy, and I'll go to that bureaucrat, he will not listen to me. At a lot of stages, women entrepreneurs do not get a lot more rights as much as they should. Women entrepreneurs are always looked down upon as well. Like, people question, oh, you're a woman of such a big business, is that possible? आप तो महिला हैं, आप तो चली जाएंगी ना वापस. You're not serious just because you're a woman. You're not serious about your venture. Yes, absolutely. He's like, आपको पैसे क्यों चाहिए? आप तो चली ही जाएंगी ना, काम नहीं हुआ तो. And like, no, I'm here to stay. I'm here to bring that change. And just because I'm a woman, I'm not backing up. Hello, how are you? Welcome. So tell me about yourself. Surely. I am very curious about the startup ecosystem in Bihar now. There are a lot of girls in it as well, right? We founded this startup like in 2022. So we have a vision that we want to use technology for the betterment of the people. This is Ratan Tata. Yes. I don't believe in taking right decisions. I take decisions and then make them right. A lot of inspirational words. So we are working on drones, as you can see here. We use it for surveillance. As you know that in Bihar we caught a lot of alcohol and everything. So we use this drone for that. And this is agricultural drone. We are using this for farmers. So, but how many drones have you sold? This one for surveillance. Have you found takers for this one? Not much अभी के लिए, लेकिन we want कि farmers ये use करें because this is cost effective. As a farmer or as a normal person, we cannot see like अभी इसको पानी की जरूरत है, इसको अभी खाद की जरूरत है या इसको अभी किसी और चीज की जरूरत है. But this is the thing. It has parameters in this in its software so that it can analyze कि अभी soil को pesticides की जरूरत है. You started in 2022. In 3 years, how many drones have you sold? Around 100 to 150 we have sold it in Bihar. And surveillance wale and this one as well? Yes, and also delivery drone. This is our like pilot project right now. Okay. So we are piloting this in Gorakhpur and in AIIMS Patna. आप इससे deliver कर सकते हैं blood and medicines. It can carry 1 kg, around 700 grams to 1 kg. And ये This will be for delivery purpose? Yes. Nitika, there's a lot of chatter about does the government in Bihar support a startup ecosystem? सरकार से कितना सपोर्ट मिला है? So बिहार गवर्नमेंट की तरफ से हमारे लिए बहुत ज़्यादा सुविधाएं हैं already. They are giving us seed funds as well for 10 lakhs for women. So women entrepreneurs, and I already applied for that, and I'm wondering कि जितनी भी फीमेल entrepreneurs हैं उनको ये सब चीज़ें करनी चाहिए. And बिहार सरकार जो है वो बढ़ के आगे हम लोगों को हेल्प कर रही है कि आप आगे बढ़ो, स्पेशली फॉर विमेन. आई नेवर थॉट दैट आई कैन डू दैट, बट विद द हेल्प ऑफ गवर्नमेंट, बिहार गवर्नमेंट, आई एम डूइंग दिस. From bicycles to young girls to Jivika Didis
to 50% reservation for women in Panchayat. Nitish Kumar has nurtured the women of Bihar as his constituency ever since he came to power 20 years ago. And this group, the women of Bihar, have also rewarded him election after election. And this time around, it is the direct benefit transfer which is being used by the NDA to woo in this crucial women constituency. नीतीश कुमार ने 10,000 अनाउंस किया महिलाओं के लिए। तेजस्वी यादव बोलते हैं कि जीविका दीदी का परमानेंट कर देंगे, 30,000 रुपया पर महीना देंगे। तो आप लोगों के लिए तो दोनों हाथ में लड्डू है। तो दोनों हाथ में लड्डू है ये है। जीविका दीदी के जो जीविका के मिल गया, जो दीदी नहीं मिला है माने तो उसको देंगे। सब एक लोग ना है, उनको सरकार को एक लोग चलेंगे, एक महिला चलेंगे, सभी आदमी, तब ना उनको ठीक होगा। तो इस समूह में कितनी महिला को 10,000 रुपया मिल गया है? किसको किसको मिल गया है? सबको मिल गया है, सबको आ गया 10,000 रुपया अकाउंट में। जी दीदी जी, अच्छा ठीक है, इतनी महिलाओं को आ गया है। अच्छा मुझे बताइए, एक तरफ तेजस्वी ने अनाउंसमेंट किया है, नीतीश कुमार की सरकार ने 10,000 रुपया भी बांटने की कोशिश की है। क्या महिलाओं के हाथ में दोनों तरफ से लड्डू है? अगर इधर नहीं तो उधर? एक तरफ से है लड्डू। कैसे? एक तरफ कैसे? कैसे? एक के मोदी जी के तरफ से, नीतीश जी के तरफ से। हाँ, एक तरफ वोट गिरेगा। तब रह गए कि हमको 10,000 रुपया मिला है, तो हम लोग अति 7 गो बकरी किने हैं, और तब हम हरा सब्जी के बिजनेस किए हैं, किसान हैं। 10,000 रुपया से आपने 7 बकरी खरीदी। हाँ। जिसको मिला है वो क्या सोच रही है महिला? क्या बात है, सोचते हैं कि मैं खेती करेंगी, तो खेती तो अभी डूबा हुआ है बाढ़ से, तो हम लोग से खेती कैसे करेंगे? आगे मुझे कैसे विकास करेंगे, आप ही बताइए हमको। जब समूह में हम 10 जुटे हैं दीदी सब, तो 10,000 यदि मोदी जी दे रहे हैं और नीतीश जी दे रहे हैं, तो 10,000 से तो जीवन नहीं चलेगा। तो अगर 10,000 से नहीं चलेगा, तो फिर जो तेजस्वी बोल रहे हैं कि जीविका को परमानेंट कर देंगे और 30,000 रुपया पर महीना देंगे, तो वो उससे जिंदगी चलेगी? नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, किसी से नहीं चलेगी। हाँ, तो महिला फिर क्या करे? महिला क्या करेगा? महिला के अथी रोड दीजिए, रोड बनवाइए, और अथी मेडिकल बनवाइए, इंदिरा आवास दीजिए, तभी जनता लोग सब अथी रहेगा। और जो तेजस्वी ने बोला उसके बारे में क्या बोलेंगी? नहीं देंगे। ये जो नीतीश कुमार की सरकार ने 20 साल में महिलाओं के लिए कुछ किया है या बस ज्यादा बोला है? महिला क्या सोचती है कि नीतीश कुमार ने कुछ किया है? बहुत किया है नीतीश कुमार, उसको लिए तो इतना रोड बनवाए, दाम बूढ़ा सा के वृद्धा पेंशन मिलाते हैं, दाम गली गली में रोड बना देते हैं, तो कैसे ना किया? मोदी सरकार बहुत किया। दीजिए रोड दीजिएगा तो दाम जय जय करके जिताएंगे, दाम जय जय के जिताएंगे नीतीश कुमार का, दाम झंडा फहराएगा। हमको रोड पहले बनाइए, रोड तब वोट मिलेगा। तो इस बार महिलाओं के लिए नीतीश कुमार ने भी अनाउंस किया है, महिलाओं के लिए तेजस्वी ने भी बोला है कि वो भी करेंगे। तो महिलाएं किसके साथ जाएंगी? महिलाएं नीतीश कुमार को वोट देंगे। नीतीश कुमार पैसा दिया है, नीतीश कुमार को वोट देंगे। लालटेन बढ़ बतिहर बढ़ मोदी के राज में बिजली फ्री, नल फ्री, राशन फ्री, 10,000 मिल रही है, हम लोग उसको वोट देंगे। साइकिल कब मिली? साइकिल 9th में थे तब। 9th में मिली। अभी कौन से क्लास में हो? अभी ग्रेजुएशन। क्या सोच रही हो इस बार, किसको वोट देना है? बच्चों को बहुत तकलीफ होती है गांव से स्कूल कॉलेज आने के लिए, तो इस बार यही मांगे कि रोड बना दी जाए गांव में, जो रोड बनाएगा उसको वोट मिल जाएगा। हाँ। और सब लोग बोलता है कि नीतीश कुमार ने महिलाओं के लिए बहुत किया, और इस बार तेजस्वी ने भी महिलाओं के लिए कुछ अनाउंसमेंट किया है। तुमको क्या लगता है कौन अच्छा है? नीतीश कुमार अच्छे हैं, उनको वोट मिलनी चाहिए। वोट मिलनी चाहिए? हाँ, यस मैम, लेकिन हमारे गांव में रोड भी बननी चाहिए, उसके बाद ही मिलेगी वोट। आजकल तो सब लोग फोन से कनेक्टेड है पूरी दुनिया में, तो इस बात का एहसास होता है कि हम लोग आज भी सड़क की बात कर रहे हैं और बाकी लोग
कितने आगे निकल गए हैं? आगे तो निकल गया, हमारा गांव बहुत पीछे है रोड को लेके। हमारे गांव में रोड नहीं है, इसके वजह से पूरा गांव पीछे है हमारा। चुनाव सर पर है, महिलाएं क्या सोच रही हैं इस बार? महिलाओं जो विकास हुआ है, विकास पर सोच रही हैं। फिर जो नवयुवक लोग का रोजी रोटी भी चाहिए। गांव में विकास हो रहा है, जो सरकार जितने विकास कर रहे हैं हम लोग विकास की ओर है। और नवयुवक जितनी लड़का लड़की पढ़े लिखे बैठे हैं उनका नौकरी चाहिए, उनका रोजगार चाहिए। और नीतीश कुमार की सरकार ने कुछ किया है? बहुत कुछ किए हैं। अभी जो 10,000 दिया है उसी पर महिलाएं सब खुश हैं? नहीं, उस पर नहीं खुश हैं। वो 10,000 नहीं, वो मैं आ रही हूँ आपके पास दीदी, आ रही हूँ। नहीं, 10,000 पर खुश नहीं है। 10,000 से पहले रोड दिए तो सबके लिए है। रोड है, मकान है, शौचालय है, नल जल है, बच्चा का स्कूल में ड्रेस मिलता है, साइकिल मिलता है। लेकिन सब लोग बोल रहे हैं कि जो बिहार की महिलाएं हैं, जो 10,000 रुपया अभी अनाउंस हुआ है उसी पर सब साथ में आ गई। सब आदमी पैसा पर नहीं बिकता है, व्यवहार पर बिकता है। व्यवहार पर व्यवहार दिख रहा है। क्या काम दिख रहा है? विकास का काम के सारा जो पहले कोई विकास का काम नहीं होता था, लेकिन 20 बरस में बहुत सारा विकास का काम हुआ है। तो बिहार की महिलाएं अभी तेजस्वी ने भी जीविका दीदी के लिए अनाउंस किया कि जॉब जो है वो परमानेंट कर देंगे। जीविका से परमानेंट कर देंगे। हाँ, आ रहे दीदी। केवल जीविका महिला तो नहीं है कि बिहार में तो बहुत सारे महिला हैं। जीविका को परमानेंट कर देंगे। और महिला कहाँ जाएगी? और महिला और उनके लड़का लड़की उन लोग के लिए भी तो सोचे। जीविका महिला से केवल नहीं न होगा। तो आप लोग जीविका दीदी नहीं है कोई? हम लोग जीविका से हैं। जीविका से भी? हाँ, जीविका है तो सब जितनी महिला सबको थोड़े नौकरी हो जाएगा। हाँ, तो बिहार की महिलाओं के लिए मुद्दा क्या क्या है? अब हमारे आपकी तरफ आप बोलना चाह रही थी ना, हमारे आपके पास भाई। चलिए बताइए दीदी, बिहार की महिलाओं का मुद्दा क्या है इस बार चुनाव में? बिहार के मुद्दा है यही जो 10,000 रुपया से क्या होगा। घर में परिवार लोग रहता है, बैठता है, उठता है। अभी सबको मिल रहा है कहाँ? वही लोग को मिल रहा है, बाकी सबको नहीं मिल रहा है। जो जीविका में नहीं है, जो उससे भी ज्यादा गरीब महिलाएं हैं, जिसके पास खाने के लिए नहीं है, रहने के लिए घर नहीं है अच्छे से, तो सबको देते तब तो समझते ना। बस जीविका से जो जुड़े हुए उसी लोग को दे रहे हैं। तो यहाँ सबको चाहिए ना। बहुत ऐसे गरीब है जिसको खाने के लिए नहीं है, रहने के लिए नहीं है, पहनने के लिए नहीं है, विद्यालय जाने के लिए कपड़े नहीं है। तो सारे चीज को देखेंगे, सारी महिलाओं को देखेंगे तब ना। तो महिला क्या जात पर वोट देंगी? हाँ, जात पर क्यों वोट देंगे? किस मुद्दे पर वोट देंगी महिला? मुद्दे पर देंगे जो सम्मान मिला है नीतीश सरकार से। क्या महिला के मान सम्मान मिला है नीतीश सरकार से? पहले मान सम्मान नहीं था, अब मान सम्मान मिला है। महिला कमाता है तो 2 रुपया कमाता है। पहले जेंट्स से मांगने जाता 10 रुपया दीजिए ना, अब अपने कमाता है, जो मन करता है ऐसे करता है। और शराबबंदी नीतीश कुमार करा दिया था और महिला के उपकार हुआ तो अच्छा हुआ। तो अच्छा नहीं हुआ? नहीं तो हाँ बताइए, क्या बोल रही थी शराबबंदी के बारे में आप? शराबबंदी कहाँ हो रहा है मैम? नहीं हुआ है। शराब पी रहा है, लोग पीने वाले वो पी ही रहे हैं, चाहे जितना भी उसका दाम बढ़ जाए। पीने वाले तो पी ही रहे हैं, ड्रामा कर ही रहे हैं और बिगड़ ही गए हैं। घर में आके कर ही रहे हैं ड्रामा, मारपीट कर ही रहे हैं। जहाँ तक सुरक्षा की बात है, कहाँ सुरक्षा में है औरत? महिला सुरक्षा भी नहीं है। कहाँ सुरक्षा में है? रास्ते में चलो तो छीटाकसी होता ही है, सड़क पे चलो तो, चाहे घर में रहो तो, जिसका जो मनमानी वो तो कर ही रहा है। कहाँ कुछ सुरक्षा है? सरकार घर पे नहीं है। इतना जो बोल रहा, सब लोग बोलता है कि महिलाओं के लिए नीतीश कुमार ने बहुत किया है। तो क्या हमारी बात वहाँ तक पहुँच पाएगी? नहीं पहुँच पाएगी। एक हमारे घर में अगर कोई प्रॉब्लम हो जाता है तो मुखिया के यहाँ 10 बार दौड़िए तब आएगा तो भी पक्ष में बोलेगा, ना बोलेगा कुछ नहीं। तो जिसके दरवाजे तक हम पहुँच सकते हैं वो तो हमारा भला करेगा ही नहीं। सरकार तो हमसे बहुत दूर है, कहते हैं ना दिल्ली बहुत दूर है, वैसे ही